Students, how are you all? Welcome to our online classes. In this video we will be starting chapter number 6, pronouns. So what is pronoun? A pronoun are the words that stand in place of noun. They help us to avoid the awkwardness of repeating same noun in paragraph again and again. So what is pronoun? The words which can be used in place of noun. नाउन जहाँ पे भी अपन लगा रहे हैं नेम प्लेस एनिमल थिंग, उन सब के नेम प्लेस एनिमल थिंग्स की जगह अगर अपन प्रोनाउन यूज़ करें या कुछ ऐसे वर्ड्स करें जो कि उनको रिप्लेस करें एंड दे आर true to their gender and number. This thing, they are true to gender and number. I will be explaining with the kinds of noun. For starting you should know कि जो भी word noun की जगह अपन use करें that is pronoun. And why we use pronoun? Because it help in removing the awkwardness by repeating same noun या same words in paragraph again and again. If I say means कि how it is awkward, तो उसका example ये हो सकता है कि सीता loves bicycle, सीता goes to school, सीता is living in her house, सीता wants to play. तो हर बार सीता सीता while repeating the noun, here I am using the name of some person. If I would say about this pencil, I love this pencil, okay, you can say I got this pencil from my friend, she bought this pencil from the market. तो उसकी जगह मैं word क्या यूज़ कर सकती हूँ? सीता give me pencil, it is a gift. तो मैं पेंसिल की जगह इसको क्या कहूँगी? It is a gift. तो I am not using same words again and again because it creates awkwardness. Awkwardness means सुनने में बिल्कुल ऐसा fluent या बिल्कुल easy नहीं लगता. So now let's see the kind of pronoun. Pronoun have 9 kinds. First is personal pronoun, second reflexive pronoun, third emphatic pronoun, fourth indefinite pronoun, fifth demonstrative pronoun, sixth interrogative pronoun, seventh relative pronoun. So there are 9 kind of pronoun. You can read and I can tell you later that at the end what are more 8 and 9 kind of pronoun. So let's begin with the first kind of pronoun, that is personal pronoun. The pronoun used in place of person, animal, thing, place, etc. are called personal pronoun. So अगेन एक ऐसा वर्ड जहाँ पे अपन किसी पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उस नाउन को रिप्लेस करके जो भी वर्ड यूज होगा दैट वुड बी पर्सनल प्रोनाउन. नाउ इन द ब्लू इट इज रिटन पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो what they mean by persons? तो फर्स्ट पर्सन क्या है? The pronoun which refers to the person speaking is called first person. For example, I, we, me, us, mine, ours, etc. So here first person is the person who is speaking. So I am speaking, so I am first person. Now what is second person? Second person is the pronoun which refers to the person spoken to is called second person, that is you and yours. So I am speaking to you, so I am, or you can say I am talking to you, so you are second person. Now third person, the third person is the pronoun which refers to the person or a thing spoken of. important thing क्या है यहाँ पे? person और thing spoken of. spoken of means जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, हिम, हर, हिज, दे, देम, देयर. सो वेर एवर यू सी दीज प्रोनाउन, सो यू कैन ईजिली गेस कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे लिखा है अस,
तो अस का मतलब क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन। नाउ द थर्ड पर्सन क्या हो गया, जैसे अपन ने सेंटेंस में पढ़ा था, देयर इज सब्जेक्ट, देयर इज ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो नाउ ऑब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, कि मैं आपको जिस बारे में बात कर रही हूँ आपसे, तो वो थर्ड पर्सन है। माइट भी मैं किसी रियलिटी में किसी पर्सन के बारे में बात कर सकती हूँ, या मैं किसी थिंग के बारे में बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, like I am talking to my friend Neha, okay, so if I am talking about, I am talking to Neha that Mrs. Rama is a bad woman, तो मैं नेहा को मिसेस रमा के बारे में बता रही हूँ, तो आई एम टेलिंग ऑफ मिसेस रमा, तो मिसेस रमा इज द थर्ड पर्सन। नाउ अगेन आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड अबाउट दिस पेंसिल, कि आई इफ लाइक माई फ्रेंड इज सिटिंग नियर टू मी, और अगेन आई एम टॉकिंग टू ऑन फोन, तो मैं कहूँगी कि आई हैव बॉट अ न्यू पेंसिल, तो आई एम स्पीकिंग फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू मी इज सेकेंड पर्सन, और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इस पेंसिल के बारे में। सो दिस थिंग इज थर्ड पर्सन। नाउ हेयर इन this table, that here this means that pronoun should be true to its gender and number. So this means कि अगर आप pronoun यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें exactly fit होना चाहिए noun से। In case of gender, gender means masculine and feminine, अगर मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, I will use he, him, and if I am talking about girl, she, her, and if I am talking about anything, or you can say neutral, then the word will come it. It pronoun will be used. So let's see the table. So here is the person, first person, second person, third person. Next the column is singular. If the person who is talking is singular, means अगर एक जना बात कर रहा है तो वो कौन से प्रोनाउन यूज होंगे, आई एंड माइन। इफ मैनी पीपल आर फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स प्लूरल, देन वी विल यूज वी एंड अस। इन केस ऑफ सेकेंड पर्सन, यू एंड योर्स, अगर वहाँ पे अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ अगर वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, देन यू आएगा। अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल, तो मैं कहूँगी योर्स। ओके, तो अगेन यू एंड योर्स विल बी कॉमन इन सिंगुलर एंड प्लूरल। इफ अगर मैं बहुत सारे ओके अगर मैं यहाँ पे मेरे सामने एक बॉय बैठा है तब भी मैं उसको कहूँगी यू आर अ गुड बॉय। ओके, और अगर मैं ग्रुप ऑफ पीपल से बात करूँगी तो मैं कह दूँगी योर्स। सो जहाँ पे बेसिकली ऐसा आता है तो देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ थर्ड पर्सन, इफ़ द थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो अगर वो सिंगुलर है, देन ही, शी, इट, हर, हिज, एंड अगर बहुत सारे हैं प्लूरल, देन दे, देम, देयर्स। इन केस ऑफ थर्ड पर्सन, नाउ आई सेड इन केस ऑफ जेंडर, इफ द पर्सनल प्रोनाउन मे बी ऑफ मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। न्यूटर जेंडर मीन्स ना ही फीमेल ना ही मेल। तो इफ़ दिस इज़ अ पेंसिल, तो मैं ये नहीं कह सकती कि पेंसिल फीमेल कैटेगरी में है या मेल कैटेगरी में, और इट इज़ अ फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, इट इज़ अ न्यूटर। सो इन केस ऑफ मैस्कुलाइन ही, हिज, हिम, फेमिनाइन में शी एंड हर, न्यूटर में इट एंड इट्स। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर मीन्स कि वहाँ पे एक ग्रुप में बीच में ही गर्ल्स हैं, बीच में ही बॉयज़ हैं, तब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी, यू, योर, देयर्स, देम। एंड अगेन कॉमन जेंडर में क्या आ जाएगा, आई, वी, अस। ओके, नाउ लास्ट लाइन, केस, अ पर्सनल प्रोनाउन में सर्व एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और मे शो पोजेशन। तो जहाँ पे भी अगर आपको एक सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा वर्ड है, देन यू विल यूज़ दिस रूल दैट कोई भी उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा वर्ड
जो पोजेशन शो करे, पोजेशन मीन्स ओनरशिप। लाइक मैं इफ़ आई एम टॉकिंग कि दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, तो आई एम शोइंग पोजेशन, आई एम शोइंग ओनरशिप। तो जहाँ पे भी आपको वर्ड्स दिखेंगे, प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा कैसे सर्व करेंगे एक सेंटेंस में या एक पैराग्राफ में, या तो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट और माइट बी अ समथिंग दैट विल शो पोजेशन। नाउ here are the case, there are again 3 case, nominative case, objective case, possessive case, कि how you will understand कि ये nominative case है। nominative case means कि आपको कैसे पता चलेगा ये प्रोनाउन अगर यूज़ हुआ है तो ये सब्जेक्ट है। इफ़ आई से आई लाइक ब्लू ड्रेस, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में। सो आई में क्या आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस एंड पर्सनल प्रोनाउन। इन ऑब्जेक्टिव केस अ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, वो आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। कि अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन को जैसे मैं कहूँगी योर्स, योर्स वर्क इज़ कमेंडेबल, तो यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। देन अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आएगा। नाउ थर्ड इज पोजेसिव केस, अ पर्सनल प्रोनाउन शोइंग पोजेशन ऑफ समथिंग इज इन अ पोजेसिव केस। दैट आई टोल्ड यू, इफ समथिंग इज टेलिंग दैट शोइंग ओनरशिप और शोइंग पोजेसिव, दैट इज अंडर पोजेसिव केस प्रोनाउन। सो हेयर इज द अनदर टेबल ऑफ, यू कैन ईजिली गेट कि अगर आपको जहाँ पे भी ये प्रोनाउंस दिखे, इन नॉमिनेटिव केस कौन से वर्ड्स आपको दिखेंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इन ऑब्जेक्टिव केस यू विल सी मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम। इन पोजेसिव केस माइन, आर्स, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। सो here you can easily understand, do not get confused, जो जितने भी केस हैं ये किसका पार्ट है, पर्सनल प्रोनाउन का। अपन से वो अगर इफ आई एम सेइंग कि ऑब्जेक्टिव केस में मी आ रहा है तो मैं उसको ऑब्जेक्टिव केस, इट इज़ ट्रू बट इट इज़ ऑल्सो अ पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, a pronoun in which the action of the subject reflects or turn back on the subject itself is called reflexive pronoun. So here the action of subject is, okay, if I am cooking, okay, so I am doing action and if I got burnt, okay, तो जो भी एक्शन क्या था मेरे ऊपर ही रिफ्लेक्ट करा, तो जो बर्निंग का और यू कैन से जो एक्शन था कुकिंग का, तो उससे अगर मुझे जल गया तो वो उस एक्शन का रिजल्ट किस पे आया, ये, और द एक्शन का जो रिफ्लेक्ट है वो किस पे आया, टर्न बैक ऑन सब्जेक्ट इटसेल्फ। इटसेल्फ मीन्स खुद के ऊपर। सो अगर सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन है उसका रिजल्ट या उसका यू कैन से द आउटकम वो किसके ऊपर आ जाएगा, सीधा सब्जेक्ट के खुद के ऊपर। सो इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इंजॉयड हर सेल्फ, यू मेड योर सेल्फ एंग्री, आई ऑफन टॉक टू माई सेल्फ, द हॉर्स हर्ट्स इट सेल्फ। सो इफ विल टेक बी एग्जाम्पल, यू मेड योर सेल्फ एंग्री, कि तुमने खुद ने अपने आप को गुस्से में लाया। ओके, तो जो भी एक्शन करा उसका रिजल्ट क्या था, एंगर, तो वो आपके खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करा, यू मेड योर सेल्फ एंग्री। सो हेयर इट इज़ रिटन, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म बाय जॉइनिंग सेल्फ और सेल्व्स टू सम प्रोनाउन एज सफिक्सेस। सेल्फ इज सफिक्स टू सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एंड सेल्व्स टू प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। सो जो सेल्फ है, SELF, तो ये सफिक्स मीन्स एट द एंड, पर्सनल प्रोनाउन। सो माई हेयर इन द एग्जाम्पल, सो माई इज पर्सनल प्रोनाउन, SELF, सेल्फ,
इफ़ आई एम एडिंग सेल्फ टू माई पर्सनल प्रोनाउन तो वो वर्ड क्या आएगा, माई सेल्फ। तो जो न्यू वर्ड आएगा माई सेल्फ, तो माई सेल्फ इज reflexive pronoun, or you can say reflexive pronoun are formed with the help of personal pronoun. So here take the next example, be your plus self, yourself, him plus self, himself, it plus self, itself। तो ये सब SELF सेल्फ, तो ये कब यूज होगा, when the case is singular, and when the case is plural मीन्स एक से ज़्यादा होंगे, टू और मोर देन टू, देन आ जाएगा सेल्व्स, SELVES। नाउ सेल्व्स इज सफिक्स टू पर्सनल प्रोनाउन। हाउ, लेट्स सी एग्जाम्पल, आर प्लस सेल्फ आवर सेल्व्स, योर प्लस सेल्व्स योर सेल्व्स, देम प्लस सेल्व्स देम सेल्व्स। तो ये सारे वर्ड्स आपको जब भी जहाँ दिखेंगे तो ये आपको ईजिली याद रहेगा कि ये अंडर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एंड अंडर व्हेन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज प्लूरल। नाउ दिस इज वन मोर टेबल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन द केस ऑफ फर्स्ट पर्सन के लिए अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हो तो वो कैसे आएगा, इफ़ पर्सनल प्रोनाउन में तो आई आएगा, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ आ जाएगा। आई लव टू गो टू गोवा, तो यहाँ पे एक सेंटेंस, एंड इसी का मीनिंग मैं नहीं चेंज करते हुए कैसे होगा, आई माई सेल्फ और मी माई सेल्फ विल गो टू गोवा। सो इफ़ आई एम टॉकिंग, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, तो ये वाले प्रोनाउन यूज होंगे। नाउ इन केस ऑफ प्लूरल, वी का चेंज कैसे होगा, आवर सेल्फ। इन केस ऑफ सेकेंड पर्सन, यू इज पर्सनल प्रोनाउन, योर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ इन थर्ड, here it is written you, yourself. In case of third person, he, himself, she, herself, it, itself. It is again used in case of neuter, कि जब masculine and feminine नहीं यूज होगा तब word it and itself का यूज होगा। And here last में क्या है, reflexive pronoun themselves, in case of personal pronoun they. So now this is the end of this topic. We'll be discussing another kind of pronoun in another video. Until then, you can listen it and you can use these pronoun in your daily life so that you can easily you can have a conversation with your friend and try to use these pronoun in case of when you are singular, in case when you are talking, like if group of people again talking to some one person, then आ जाएगा we are talking to so and so person. So that's all for this video. Thank you so much for listening.